से एक बार welcome each and everyone to the evening, the gala evening with MFRT Samman 2023. But before that, we will have exclusive with only and only Anupam Kher. Can we all stand for a while and let's do the tempo high. And once that is high, we will have the man himself coming over here, speaking to us, and then we will be able to listen to him in all the way we want him. सुनना चाहते हैं ना हम? आए हैं. So let's do a little bit of energy, and I am sure सब receptive अपने आप हो जाएंगे. एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे फनकार, थोड़ा हिंदी ज़्यादा होगा. So my dear friends, please do manage. But I think English and Hindi दोनों ही होगा. So that's going to be there. So before he comes, let's do once more. MFR take a tempo. MFR take a tempo. MFR take a tempo. Give yourself a big round. High five to the person standing next to you. High five. एक बार और दो चार जन को. Let's rock and let's be loud, friends. This is going to be phenomenal for each one of us, experiencing something which is very, very exciting. So are we ready again? Okay, so let's invite our host again and be with her for some time to know what Anupam Kher is, which most of us know. So please settle down. Thank you so much, Kanakji, for pepping up the audience so much. This man brings on a different sort of energy altogether. I'm highly impressed. All right. Let me tell you a little bit about Sir. There's nothing actually that we don't know about him because he's been a public figure since so many years, 40 years and more in this industry. His most recent accolades are 2019, he was listed as one of the top 10 social media influencers in the world. Top 10 social media influencers is a very, very, very big deal. 2021, he was awarded a doctorate by the prestigious Hindu University of America, ladies and gentlemen. So we are not going to call him Mr. Anupam Kher. We shall call him Dr. Anupam Kher. Can we please give him a very big round of applause one more time? He was also awarded the Dalai Lama Award for his work with underprivileged children through the Anupam Kher Foundation, founded in 2008. And he is also an official UN ambassador for the He for She campaign. Ladies and gentlemen, we have seen him in various roles. He also has established Anupam Kher's Actor Prepares in 2005. It's a world-renowned acting school. I'm sure you all have heard of it. And we have seen him across multiple movies, amongst which one such film which really stirred up the entire industry and the entire world was the Kashmir Files. Ladies and gentlemen, it was declared as the most iconic film in Indian cinema, having gathered worldwide acclaim and record-breaking box office collections, both at domestic and international markets. Let us please have the video on screen before we invite Dr. Kher on stage. Let's have the video, please.
louder than that. Ladies and gentlemen, every single person sitting here, put your phones down and really feel this moment right from the depths of your hearts. Give it up for the one and the only Padma Shri, Padma Bhushan and Dalai Lama awardee, Dr. Anupam Kher. Please come and join us on stage. It is such an honor to have you here amongst us. Such a great moment of honor for each and everyone present here to be in your presence. Thank you so much. Turn down for what? शांत हो जाओ म्यूजिक वाले दोस्त, शांत हो जाओ. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Wonderful. Thank you for this introduction. Thank you so much. Thanks a lot. बैठ जाइए श्रीमान जी, सब लोग. श्रीमती जी भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर महिलाएं. अरे वाह, नमस्कार. कैसे हैं आप लोग? पीछे वालों ने भी पैसे दिए हैं ना? मैं अभी पीछे बातचीत कर रहा था गोविंद जी से, आप लोगों के बारे में, आशीष जी से, बाकी भी और सारे लोगों के, आपके प्रेसिडेंट साहब से, और मुझे बताया गया कि आप लोग काफ़ी पैसा देते हैं इसका बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए. तो इतना पैसा देते हैं तो आपको फिर क्या ज़रूरत है मेरी मोटिवेशन की? अगर आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, आदमी किस लिए मोटिवेशन चाहता है? अच्छा नाम कमाने के लिए, थोड़ा और पैसा कमाने के लिए. तो अगर आपकी मेंबरशिप फीस इतनी है जितनी मुझे पता चली है, तो वो मोटिवेशन तो आपकी नहीं है कि आपको पैसा चाहिए. ऐसा तो नहीं है ना? ये देखो, ग्रीड का क्या मतलब होता है. लालच जो है, ये नहीं बोलना चाहते कि हमारे पास 20 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, इतना नहीं चाहिए, हमें और चाहिए. तो किसी ने भी हाँ में जवाब नहीं दिया. तो जब तक पैसे का लालच और पैसे की ग्रीड खत्म नहीं होगी, तब तक मोटिवेशन नहीं आएगी. सबसे बड़ी बात तो यह है. अब आप मोटिवेशन, आपका ये सालाना प्रोग्राम होता होगा कि आपको साल में 2 दिन के लिए बुलाया जाता होगा, कैलकाटा चैप्टर, बाकी चैप्टर, और किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाता होगा जिसके बारे में सुना है कि वो सक्सेसफुल है, शायद अच्छा बोलता है या बोलती हैं, और फिर उससे कहा जाता है कि आप लोगों को मोटिवेशन दें. तो किस चीज़ की मोटिवेशन दूं मैं आपको? ज़िंदगी से जूझने की और पैसा कमाने के पास तो मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि जितना पैसा मुझे चाहिए था उतना मेरे पास है, और पैसा मेरे लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं है लाइफ में. सो फ्रॉम दैट एंगल आई एम द रॉन्ग पर्सन टू हैव कॉल्ड हियर. यस, ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं सीखने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं. उस हिसाब से क्या आप कामयाब इंसान हैं? क्या आप एक कामयाब पुत्र हैं? क्या एक आप कामयाब पिता हैं, माता हैं? क्या आप एक कामयाब एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयर हैं? मेरा वो मानना ज़्यादा है. तो और फिर बुलाया आपने ऐसे लोगों को है जिसने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई में 38% मार्क्स ज़्यादा लिए ही नहीं. ये सच बात है. मेरे एजुकेशन BA तक मेरे कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए. चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप आगे वाले भी और पीछे वाले, आप में से 50% से ज़्यादा किसके मार्क्स आए हैं? मतलब 100% के 50% आए हैं. 60% कितने आए हैं? अरे बाप रे, 70% से ज़्यादा किसके आए हैं? और इतने सारे. और 80% से ज़्यादा? ओ माय गॉड. फिर भी आप नीचे बैठे हैं और मैं मंच पे खड़ा हूँ. तो पहले तो मैं साबित कर दूं कि करेक्ट आदमी को बुलाया है, तो इसलिए वो क्वालिफिकेशन क्वेश्चनेबल नहीं है ना. सो बंदा तो सही है. अब जो बंदा बोलने वाला है, जो कुछ आपको मेरे प्रति ये होगा कि मनोरंजक बोलते हैं या एक्टर अच्छे हैं,
मगर जब मैं अपना कोई मोटिवेशनल बात करता हूं तो मेरा, आपने पढ़ा ये पावर ऑफ फेलियर। अब पावर ऑफ फेलियर का आप लोगों को ये बड़ा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि पावर ऑफ फेलियर टू द पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल। तो फेलियर से आप लोगों का क्या लेना देना, ऐसा मुझे लगता है। पर मेरा जो पूरा जीवन है, मेरी जो पूरी जिंदगी है, इट इज ए सम टोटल ऑफ माई फेलियर्स। मैं कभी भी फेलियर से नहीं घबराया, उसी वजह से मैं कामयाब हूं। क्योंकि अगर आप अपनी तुलना किसी ओ भाई साहब फोन छोड़ो ना दोनों, ये देखिए ये फेलियर है। सब लोग अपने मैसेज में जानना चाहता हूं कि क्या मैसेज देख रहे हैं आप। एक तो आपका मेरा हेयर स्टाइल है, हैं? क्या ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है श्रीमान जी? आपकी तो मैंने फोटो भी खींची एलिवेटर में, है ना? अगले MF40 का बुकिंग देख रहा था, क्योंकि इतना क्राउड अगर बुक करता है तो अगले MF40 में नहीं चांस मिलेगा। प्रॉब्लम यही है कि आगे क्या हो रहा है हम उसकी सोच रहे हैं, अभी क्या हो रहा है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो अभी जो सोच रहे हैं अगर वो आप करेंगे तो आगे वाला कामयाबी होगा। श्रीमान जी आप क्या मैसेज देख रहे थे? देखूं मैं आपका फोन? अच्छा, मिस्ड कॉल देख रहे थे, किसकी है? किसका फोन का इंतजार कर रहे हैं आप? देख रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं फोन अपने पास रख लेता हूं, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो अगर मुझे बुलाया है, मुझे पैसे भी दिए हैं आप लोगों ने, फिर भी आप अगर फोन को देख रहे हैं तो फिर आपसे ज्यादा नाकामयाब इंसान कोई नहीं है। आप समझे ना? आप आधे पौने घंटे के लिए भूल जाइए, आधे पौने घंटे के लिए जीवन को जीते हैं। क्या होता है जीवन को जीना? जीवन को जीना मतलब जो बात हो रही है वो सुने। नॉट कि मैं कोई ऐसा कोई गॉडमैन या कोई मैं बहुत ज्ञानी इंसान हूं, मगर फिर भी हम जिस पल में जी रहे हैं उस पल में हम रह ही नहीं रहे हैं। वी आर ऑलवेज समवेयर एल्स देन वेयर वी शुड बी। तो ये देखिए एक भाई साहब अभी भी लगे हुए फोन पे। ये आज तो इनके मैं ये प्रैक्टिकली ही ये ठीक हो सकता है श्रीमान जी। आप ही के पास आ रहा हूं, जो ये सोच रहे हैं कि किसके पास आ रहे हैं उनको पता है मैं किन के पास आ रहा हूं। श्रीमान जी किसका फोन आने का? आपका रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, मत करिए रिकॉर्डिंग, अभी सुनिए और मस्तिष्क में डाल दीजिए तो रिकॉर्डिंग लाइव हो जाएगी। ठीक है? ये देखिए आ गई मैडम, ये देखिए ये जीवन ये है, जीवन ये है। हम अपने जीवन को मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, हम बेसिकली मोबाइल के कैदी हैं। ये प्रॉब्लम। मैं अपना आधा घंटा अरे आप लोग क्यों आ गए बॉडीगार्ड? मुझे कोई मारने वाला थोड़ा है यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? ऐसे आ गए जैसे मतलब राक्षस बैठे हुए यहाँ पर। बेटा 40 साल से मैं इनका मनोरंजन कर रहा हूँ, रुक जाए, मेरा ही अपना आदमी है। अरे यार तुम लोग बैठ जाओ, तुम 1 मिनट, ये बॉडीगार्ड्स को बिठा दूं मैं। ये अपना काम हालांकि सीरियसली कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बॉडीगार्ड्स के लिए ताली मारिए। चलिए आओ, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी शांत हो जाओ। कोई आपकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, कोई मुझे मारने वाला नहीं है, सब मुझे प्यार करते हैं। 40 साल से इनका मैंने 540 फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों मेरे को ये थोड़ी इन बातों से थोड़ी घबराहट होती है कि बॉडीगार्ड ये 15 लोग पीछे आ गए, कॉफ़ी ठीक है कि नहीं, कॉफ़ी में चीनी डाली है कि नहीं, अरे शक्कर लेकर आओ, चम्मच लेकर आओ। मैंने शाहीन जी को भी बोला, शाहीन रिलैक्स, प्लीज़ रिलैक्स, आई डोंट लाइक दिस हवा पनाना मेरा। मैं एक आम साधारण सा आदमी हूँ, मैं आपके जैसा हूँ, सिर्फ इतना है कि आपने मुझे फिल्मों में देखा है, इसलिए मेरा कामयाबी का जो स्तर है शायद ऐसा लगता है कि अरे फिल्मों में काम करता तो ज़्यादा कामयाब आदमी। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये तो प्रूव हो गया।
आप में से 99.9% लोगों के पास मुझसे ज्यादा पैसा है। आप में से कितने लोग, अच्छा चलिए, आप में से कितने लोग किराए के घर पे रहते हैं? 1, 2, 3। अब मैं बताऊं मैं आपसे ज्यादा अमीर क्यों? मैं किराए के घर पे रहता हूं। किसी को यकीन नहीं आ रहा है, आप जो सामने बैठे हैं कह रहे ऐसा नहीं है, पर मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने आज से 8 साल पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे घर खरीदना ही नहीं। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर खरीदना, क्योंकि मैं मुंबई में 37 रुपये लेकर आया था जनाब 3 जून 1981 को, तो मुझे लगता है कि मैं 37 रुपये तो मैं कभी भी कमा ही लूंगा, है कि नहीं? इसलिए मुझे एक दिन लगा कि नहीं लेना है मुझे, तो मैं सडनली आई फेल्ट द बिगेस्ट मोस्ट रिचेस्ट मैन। तो अब आपको मैं उस छोटे से बच्चे की 10 मिनट में कहानी सुनाता हूं, जो शिमला में पैदा हुआ था 7 मार्च को, बहुत साल पहले की बात है। तो मेरे पिताजी क्लर्क थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। 90 रुपये उनकी तनख्वाह थी, 1 महीने का 90 रुपये। और हमारे परिवार में 14 लोग रहते थे, दादाजी, दादी जी, ताया जी, मेरे अलग कज़न ब्रदर्स वगैरह, और इतनी सी छोटी सी जगह में रहते थे हम। एक कमरा कोई था और बाहर बरांडा था, एक छोटा सा किचन था। मेरे पिताजी सुबह 8 बजे निकल जाते थे, रात को 8 बजे आते थे। मेरे दादा दादी भी रहते थे, रोज़ हमको शाम को कहानियाँ वगैरह सुनाया करते थे, महाभारत की, रामायण की, सत्य की, असत्य की, कर्म की, धर्म की। हम तो सुनते थे, हमको कहानियाँ अच्छी लगती थी। और हम गरीब थे। अब गरीबी के अलग अलग नाम शुरू हो गए हैं। अब हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, फाइनेंशियली डिप्राइव्ड क्लास और अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास वगैरह वगैरह। मगर तब 2 ही किस्म की क्लासेस थी, गरीब और अमीर। मिडिल क्लास तो अब आया ना पिछले 30-40 सालों में इतना, और हम बड़े खुश थे। तो मैं सोचता था, छोटा बच्चा जब मैं 9-10 साल का था, मैं सोचता था हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? कोई हमारे को टेंशन नजर नहीं आती थी, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती थी। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे जहन से गरीब होने का डर ही निकल गया कि भाई गरीब है तो इसका मतलब कुछ नहीं, हम खुश तो हैं। और अगर बचपन खुशी से गुजरे तो आमतौर पे जिंदगी खुशी से निकलती है, क्योंकि आपका बचपन जो है, फिर जिंदगी उतार चढ़ाव अलग बात। दूसरी बात, दूसरा डर किस चीज का होता है? फेलियर का। आप सबको फेलियर का डर है, सबको, और होना भी चाहिए, ऐसा हुआ बनाया हुआ फेलियर को हमने। तो मेरे जहन से, मेरी जिंदगी से, मेरे पिताजी जो कि सिर्फ एक क्लर्क थे, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, साधारण किस्म के पिताजी थे। उनका नाम था पुष्कर नाथ। कश्मीर फाइल्स में मैंने अपना नाम पुष्कर नाथ इसलिए रखा क्योंकि मैं एक साधारण इंसान को रिप्रेजेंट करना चाहता था। हाँ, पिताजी के लिए ताली जरूर पड़ सकती है। तो चूंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो मेरे नंबर जो थे बड़े गंदे गड़बड़ आते थे, और मैं खेलकूद में भी नहीं अच्छा नहीं था। मगर आदमी आज जो आपके हमने बात कर रहा है वो सक्सेसफुल आदमी है, उसका परसेप्शन सक्सेसफुल है। और मैं हूँ पद्मश्री, पद्म भूषण, सारे दुनिया भर के डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे फेलियर से डर नहीं लगता। उसके पीछे की कहानी सुना रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि मैं खेलकूद में भी नहीं अच्छा था। मेरा नंबर हमेशा 12th प्लेयर होता था मैं क्रिकेट में। और एक दिन मुझे, मैं 5th में या 6th में था, तो एक दिन मेरे पीटी टीचर ने मुझे दौड़ता देख लिया, तो कहता है रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तभी सेकंड आएगा। वो बात अलग है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अकेला दौड़ूंगा तो सेकंड क्यों आऊंगा। तो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड पिताजी माताजी से साइन करानी होती है, ऐसा अभी भी होता है ना, कि रिपोर्ट कार्ड आई है और आपको अपने पिताजी को या माताजी को दिखानी है, वो साइन करें ताकि स्कूल वालों को पता लग जाए कि आपने पढ़ाई, अपने दिखाई है अपने रिपोर्ट कार्ड। तो मैं वेट करता था कि पिताजी कब जल्दी में ऑफिस जाने वाले हों तो मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड उनको दिखा दूं और जल्दी में साइन करके वो चले जाएं। तो एक दिन मैंने उनको अपनी रिपोर्ट कार्ड दी 9th स्टैंडर्ड की, तो वो अपनी स्टोर की चाबी भूल गए, तो वो वापस
कमरे में गए तो उनके पास फुर्सत थी देखने की। तो पहली बार उन्होंने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी और बोले तू क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ जी 59th आया हूँ। बोले स्टूडेंट कितने? मैंने कहा 60। अब मुझे लगा कि अब ये मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने एक लंबा पॉज लिया और बोला बेटा एक बात तो है, जो इंसान फर्स्ट आता है अपनी क्लास में, जो इंसान फर्स्ट आता है स्पोर्ट्स में, उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि उसको फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया। लेकिन जो 59th आया है, ये 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 28th आ सकता है, 17th आ सकता है। तो एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना। और एक बात याद रख, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। बस कर दत्तू, शांत हो जा, बस कर, बैठ जा, लेट जा थोड़ी देर के लिए। तो फेलियर इज एन इवेंट। मेरे से पहले मैडम ने मेरी स्पीच दी, मेरे बारे में बोली, वो लंबा सारा, उनका कसूर नहीं था, उनको दिया गया था मेरे ऑफिस द्वारा कि ये मेरे बारे में बोलना। कुछ 1.5 पेज की स्पीच थी कि अनुपम खेर ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि छोटा बोलो, छोटा बोलो। अगर इतनी स्पीच लंबी देनी है कि मैंने ये किया है, तो मेरा मंच पे जाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि मैंने क्या क्या किया है। तो फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। दूसरी बात, अगर आप सबसे गरीब हो तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। इन 2 चीज़ों के डर ने मुझे मुक्त कर दिया। फेलियर से मुक्त कर दिया, इस बात से मुक्त कर दिया कि गरीब होना पूरा बुरी बात है। 90 रुपए थी उनकी तनख्वाह। फिर आप लोगों को लगता होगा कि मैं बड़ा ज़बरदस्त एक्टर हूं, जो कि हूं, उसमें मुझे कभी इस बारे में घबराहट नहीं होती है। मैं बहुत ज़बरदस्त एक्टर हूं। और कल मैंने अभी अपनी एक लेटेस्ट पिक्चर देखी, हमने एक